Hello students, in this class we will discuss about chemical equivalent. It is a topic for class 7 chemistry. First we will discuss what is equivalent mass. Equivalent weight or equivalent mass of substance is the number of parts by mass of given substance which combines with or displaces directly or indirectly 1.008 part by mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen और 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस दिया है तो उस सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करती है या किसी सब्सटेंस से उसको डिस्प्लेस कर सकती है। तो द क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। सिमिलरली वी कैन टेक 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। In this reaction, Zn in zinc reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate plus hydrogen. So it is known that here I have taken 1 mole zinc and here 1 mole hydrogen molecule is given out. What is the molecular mass of 1 mole hydrogen? That will be its molecular mass, that is 2 gram. And of zinc, the mass of 1 mole zinc is its atomic mass because zinc exists in atomic form in native state. तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 65 ग्राम है। तो हियर हम वी कैन से दैट 65 ग्राम जिंक हैज डिस्प्लेस्ड 2 ग्राम हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। मींस हाउ वी विल राइट इट एज हियर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is displaced by 65 gram of zinc, right? Then how much quantity of zinc will displace only 1 gram of hydrogen? क्योंकि अभी जैसे बताया कि इक्विवेलेंट मास वो क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की जो 1.008 पार्ट ऑफ मास ऑफ आयरन को डिस्प्लेस करे, तो ये तो 2 ग्राम डिस्प्लेस कर रहा है। तो 1.008 मींस नियरली 1। तो सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will displaced by how much quantity of zinc? It will be 65 divided by 2. Use unity method simply and this will be, तो सॉल्व कर लेंगे 32.5, right? This will be the equivalent mass of zinc. इक्विवेलेंट मास को इक्विवेलेंट वेट भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो in this way we can calculate equivalent mass of zinc, right? So if oxygen part is given or chlorine part is given in any reaction, then you can use to calculate the equivalent weight for 8 part by mass of oxygen and 35.5 by mass of chlorine. Next, determination of equivalent mass. So there are several methods to determine the equivalent mass. Here we will discuss methods in which first of them is a hydrogen displacement method. If in a question, if it is given that some metal react with acid to give hydrogen gas, then you will use this method. Okay. This method you should determine equal mass of those metals which can displace hydrogen from acids like zinc, calcium, magnesium, iron. Means all active metal can you use. All active metal can you use to calculate equivalent weight of the metal. Here, the formula related to this method is mass of metal taken divided by mass of hydrogen at STP. You should remember this point at STP. In some questions, the condition may be different other than STP. Then you will have to use the ideal gas equation, that's P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2 to calculate volume, and then you will calculate weight for that particular volume and substitute that mass. Okay, तो ना मास ऑफ मेटल दिया गया होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बस निकाल लेंगे और रेशियो कर देंगे, ये हमारा इक्विवेलेंट मास होगा।
Here is one question related to the last topic. 0.65 gram of metal on treatment with dilute sulfuric acid liberate 224 ml of dry hydrogen at STP. Calculate equivalent mass of metal. तो यहाँ पर क्लियर है ना कि 0.65 ग्राम ऑफ मेटल दिया हुआ है. हमने से कहा था पिछले फॉर्मूले में कि मास ऑफ मेटल गिवन होगा. तो हियर यू कैन सी मास ऑफ मेटल इज गिवन. तो आई हैव मेड दिस डेटा इन शॉर्ट फॉर्म हियर. मास ऑफ मेटल न्यूमेरिकल का ट्रिक हम पहले बताते आ रहे हैं कि हमेशा एक शॉर्ट डेटा जरूर बनाए. मास ऑफ मेटल इज 0.65 ग्राम हियर. Volume of acid liberated at STP. Sorry, volume of this is hydrogen. Volume of hydrogen. Volume of hydrogen liberated at this much is 224 ml. As you know that मोल कांस्टेंट बताया था ना कि जब वॉल्यूम अगर दिया होता है हम 1 मोल के लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एट एसटीपी इज 22400 ml और यू कैन से 22,400 cc या क्यूबिक सेंटीमीटर. मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन क्योंकि हमें मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो 1 मोल का हम मास निकाल लेंगे दैट इज 2 ग्राम. ठीक है. तो अब हम लोग यूनिट मेथड अप्लाई करें क्योंकि हम लोग को 224 ml दिया है एट एसटीपी. तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास ऑफ हाइड्रोजन की लास्ट लाइन देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी चाहिए. तो मास ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी निकालने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वेट निकालेंगे. ठीक है. जैसे हमें पता है कि 22,400 ml हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम होता है. देन देन mass of hydrogen related to 2 to 4 ml will be how much? हो गया. It will be equals to this will be 2 multiplied 224 out of 22400, right? 2 multiplied by 224 divided by 22,400. On solving, you can calculate its volume. 224 will cancel out upon 100, 0.02. 0.02 gram will be the mass of hydrogen liberated related to 224 ml. तो अब हम फिर से फॉर्मूले को देखते हैं. तो मास ऑफ मेटल टेकन हम लोग पता है 0.65 ग्राम. मास ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी नोन है. इसको पुट करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं. व्हाट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? Here metal name is not given, so you will write it as equivalent weight of metal. Mass of metal taken is 0.65 divided by 0.02. So on solving, you will have the final result 65 by 2, 32.5. This will be the final answer, right? So this was a simple question because it was given only 224 ml dihydrogen at STP. In some questions, there may be given that this is not STP condition. Like there is one more question. On reacting 0.275 gram of metal gives out 119.7 ml of hydrogen at 20 degrees Celsius and 763 mm pressure. Calculate equivalent mass of metal. एज आई टोल्ड अर्लियर देखिए अगर आप लोग को ये एसटीपी कंडीशन ना दी जाए तो हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी जिसके डेटा हमने ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है. P1 इज द इनिशियल प्रेशर गिवन 763 mm एंड इट इज नोन एज ये चीज आप लोग बताई गई है कि अगर एसटीपी कंडीशन ना हो तो हम लोग सेकेंड केस जैसे P2 लिया हमने तो वो 760 mm लेंगे. अगर ये सेंटीमीटर में होता तो 76 सेंटीमीटर लेते. अगर यहाँ एटमॉस्फेयर होता 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर लिया था. ठीक है.
V1 is the volume given 119.7 ml at STP, sorry, at the given conditions, and T1 is 20 degrees Celsius. First, you have to change this into Kelvin by adding 273 to given temperature in Celsius. T2 760 mm, T2 दिया हुआ है 273 केल्विन, V2 निकाल लेंगे। तो अगर आप लोग V2 निकाल सकते हैं तो फाइंड करिएगा बाय द रिलेशन P1 V1 upon T1 equals V2 divided by T2. So it is known in all these six terms, only V2 is not known. So can you calculate V2 here? This will you have to do by yourself, and in case if you have any problem, you can send me in comment box, right? तो जब V2 निकल आएगा तो इस V2 से रिलेटेड अब हम लोग को निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस का वेट, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। दिस कंडीशन एग्जैक्टली एसटीपी एंड हेयर, उसके बाद फिर हमने डायरेक्टली 22400 ml का वेट इतना है, तो हमने इन वॉल्यूम से रिलेटेड वेट निकाल दिया था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये डिफरेंट कंडीशन बता, तो हमने एसटीपी का वॉल्यूम निकाल दिया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ वॉल्यूम दिया था, वो वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं। तो जो V2 निकलेगा, अब इससे रिलेटेड वेट निकालना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी वेट ऑफ हाइड्रोजन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर V2 वॉल्यूम? वेट ऑफ हाइड्रोजन रिलेटेड टू V2, तो जो V2 आएगा उसको यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग। तो व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट? इट विल बी, जैसे ने पीछे लिखा था, 2 into 224 डिवाइडेड बाय 22400, तो 2 रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 into जो वॉल्यूम V2 आएगा आपको वो पुट करना है यहाँ पर, 2 into V2 or divided by 22400 ml, right? So this will be the mass of or weight of that hydrogen at STP. ठीक है, तो अब जब मास ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा और मास ऑफ मेटल पता है, तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट of the metal will be equals to mass of metal taken, which is 0.275 gram given, okay, divided by mass of hydrogen at STP. So mass of hydrogen related to V2 at STP, you will put there. तो हम लोग करना क्या है, बस सिर्फ 0.275 ग्राम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस मास ऑफ मेटल टेकिंग जगह पर। मास ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी यहाँ से जाएगा, पुट कर दिएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट मेथड इज, तो ये हमारा था हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, मेथड नंबर 1। Now I will discuss you next method number 2, which is oxide formation method. एक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, एक ऑक्साइड रिडक्शन मेथड होता है। दोनों केसेस में ऑक्साइड का यूज किया जाता है। एज यू नो, जैसे कोई मेटल दिया गया है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। Similarly, you can given that metal oxide is reduced by carbon. Suppose ZnO plus C gives Zn plus CO. So in both cases, metal oxide or metal is given. ठीक है, तो ये तो ना क्वेश्चन में देख कर ही पता चल जाएगा कि ये ऑक्साइड फॉर्मेशन है कि ऑक्साइड रिडक्शन। अगर वो चीज दी गई है तो सिंपली यू विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास बाय दिस फॉर्मूला, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन डिस्कस किया था, जैसे हमने अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा था। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मास ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें मास ऑफ मेटल ऊपर लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मास ऑफ ऑक्सीजन और मल्टीप्लाइड बाय 8। ये जो मल्टीप्लाइड बाय 8 है वो न्यूमरेटर पार्ट में है, ओके। ये पूरा इसलिए एक ब्रैकेट में कर दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट इनटू 8। तो 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 ग्राम पार्ट के अकॉर्डिंग निकाला था कि जो सब्सटेंस का वेट है वो इक्विवेलेंट मास होगा।
ऑक्साइड के केस में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम ऐसे क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड दिया गया होगा, तो उस सिचुएशन में मास ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विद 35.5 ग्राम सम क्लोरीन से के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। तो क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 35.5, राइट? तो अभी आप लोग के में तो जैसे ये मास रिलेटेड आता है, वॉल्यूम वाली चीज तो अभी इंक्लूडेड नहीं है, तो केवल ये फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या बताया कि अगर हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर आपको दिया गया है डेटा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट मास का, मास ऑफ मेटल टेकन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। बाय एसटीपी कंडीशन ध्यान रखें वो जरूर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आइडल इक्वेशन यूज करके वॉल्यूम निकालें, फिर उससे रिलेटेड मास निकालेंगे, तब सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो मास हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है? अगर ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड है तो मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन लेंगे और होल मल्टीप्लाई बाय 8। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड होगा तो मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन और इनटू 35.5। हम देखते हैं इंसुलेटेड न्यूमेरिकल। जैसे हमने ये दो न्यूमेरिकल, ये एक ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड रिडक्शन मेथड है सॉरी ये, और ये दूसरा है क्लोरीन फॉर्मेशन मेथड या क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें, 1.08 ग्राम मेटल ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गिव्स 1 ग्राम ऑफ मेटल, राइट? तो जैसे गिवन है मास ऑफ मेटल ऑक्साइड गिवन, अगर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड यहाँ गिवन है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल नंबर 3, what is the mass of metal oxide? Is 1.08 gram. Next, mass of metal is given also 1 gram. So, what content do you need to calculate equivalent weight of metal when there is oxide reduction method or oxide formation method? As I have told you, the formula for that was equivalent mass of metal equal mass of metal upon mass of oxygen into 8. So here mass of metal oxide and metal is given. Now can you calculate mass of oxygen in this content? Give us subtracting 1.08 minus 1. You will have the answer 0.08 gram. Now you can apply the formula. Equivalent weight of the metal equals to mass of metal. Mass of metal I have it is given 1. As you know, you have to multiply whole term by 8. So we can multiply this by 8 in numerator, right? Otherwise you will have confusion into which term we are multiplying, numerator or denominator. So I already multiplied to numerator. Divided by mass of oxygen is 0.08. So this is 0.08. And now you can do the calculation. You will have 800 divided by 8. And this will be 100. Okay. तो ये इस मेथड में हम लोग ये अप्लाई करेंगे। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, तो इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ मास ऑफ मेटल कैडमियम दिया हुआ है, मास ऑफ कैडमियम क्लोराइड दिया हुआ है, अगर दोनों को सेपरेट कर देंगे तो मास ऑफ क्लोरीन निकल आएगा। ठीक है? तो मास ऑफ मेटल हम लिखेंगे 0.9367 इन न्यूमरेटर पार्ट, एज इन दिस वाला मास ऑफ मेटल यू विल पुट मल्टीप्लाई 35.5 डिवाइडेड बाय जो सबट्रैक्टेड आंसर होगा उसको हम पुट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्लास में हम लोगों ने इक्वल मास डिडक्शन पढ़ी है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा था, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए हैं हमने, और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, एंड दिस फाइनली टू न्यूमेरिकल रिलेटेड टू these two topic last. So few of the methods are there, we will discuss in later classes, and up to that do practicing and keep watching my video. Thank you.